So next I would like to call Ibrahim Sheikh from CEO of Unisons Group and talk about a blueprint of greener future and integrated to net zero innovations and real estate development. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ladies and gentlemen. सुबह से हमने बहुत सारी presentations देखी हैं and a lot of presentations have been very educational. Science Bureau initiative about the project is also very, very commendable. We'll talk about that in the beginning. आज जो टॉपिक मुझे दिया गया था या जो इस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ, it's about innovation और integrating net zero into real estate. Net zero की सब्जेक्ट जो है वो अक्सर का हर जगह पे सुनने को मिलता है, लेकिन उसकी समझ बूझ शायद ज़्यादा लोगों से नहीं है या जिनमें है वो एक certain limit तक है. So I'm going to spend a few minutes just to educate or share our own experiences with you about what net zero is, and then उसके लिए उसको किस तरह से हम real estate में integrate कर सकते हैं. And then I will share some live examples with you in terms of what we do. So rather than talk about myself, I'll just talk about the topic himself. So अगर हम देखें कि यूनाइटेड नेशंस का एक 2030 का सस्टेनेबिलिटी का प्रोग्राम है जो कि उन्होंने ग्लोबली इंट्रोड्यूस किया हुआ है और सेटअप किया हुआ है. देयर आर 17 पॉइंट्स इन दैट जो कि डिटरमिन करते हैं different aspects of sustainability in every regard, not only real estate but everything in life, everything we do in this world. उसमें से ये जो चंद points मैंने यहाँ पे choose किए हैं या represented हैं are more related to the real estate market. We don't have to go into the details. This presentation is available if somebody wants. But as an overall, we're talking about good health and well-being. We're talking about affordable and clean energy. जिसके बारे में सब लोगों ने बात की है. We're talking about decent work ethics and environment, industry innovation, और वो innovators कौन होंगे, वो क्या रोल प्ले करेंगे, ये तमाम चीजें हम बहुत कमी स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे. Sustainability in cities and commodities, उसको भी हम we will go through an overview कि क्या है. Responsible consumption, बहुत important subject है. We have to be very careful. डॉक्टर फयाज ने आज सुबह कंजम्पशन के बारे में बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी. लम्स के जो इंडियन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, we talked about कि हम कंजम्पशन बेस्ड कॉन्सेप्ट के तहत जब हम अपनी ग्रोथ को प्लान करते हैं तो उसमें हमेशा नुकसान ही होता है. So we have to be very careful about how we manage our consumption and our requirements. Climate action, life on land, and then partnerships and so on and so forth. So, very quickly, climate change is a reality. बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते थे, लेकिन it is a reality. मैं ये नहीं कहूँगा कि पिछले चंद दिनों में जो दुबई में हुआ वो climate change का नतीजा है, लेकिन it is part of it, whatever has happened there. But अगर हम देखें तो 30% of carbon emissions in the world are related to real estate. That is a huge number, only seconded by our transport industry and our basically transport industry. So real estate is the biggest contributor to carbon emissions in the world. And therefore, अगर हम ही उसके ऊपर काम कर लेंगे तो that is a big achievement कि अगर हम जो भी steps इसके ऊपर ले सकते हैं. Question ये है कि what is net zero? हमें ये समझना जरूरी है कि net zero का मतलब क्या है. बड़ा simple सा concept है. अगर हम एक बिल्डिंग लेते हैं और उसकी हम बात करते हैं कि उसकी एक सर्टेन कंजम्पशन है या उसकी एक रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उतनी ही एनर्जी अगर उस बिल्डिंग खुद प्रोड्यूस कर ले तो वो एक लिहाज से नेट जीरो है. लेकिन इसके साथ साथ उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में जो इम्पोर्टेड कार्बन जो है जो उसमें तैयार है उसको भी ऑफसेट करना जरूरी है. विच एसेंशियली मीन्स जो अभी साहिब बात कर रहे थे कि कार्बन क्रेडिट्स के हवाले से कि वो कार्बन क्रेडिट्स भी हमें जनरेट करने होंगे या एक्वायर करने होंगे to be able to truly say कि एक बिल्डिंग जो है वो completely net zero है. Yes, it is true कि एक इंडस्ट्रियल प्लांट जो है वो जितनी पावर कंज्यूम कर रहा है अगर वो सोलर एनर्जी के थ्रू अपनी एनर्जी पूरी कर लेता है या एनी अदर मीन्स के साथ तो नेट जीरो कहला सकता है, लेकिन इन ट्रू सेंस जो इम्पोर्टेंट कार्बन है उसको भी कंसिडर करना जरूरी है. So that's the basic definition of what net zero is.
Going forward, जोर से बात करो, करीब आ जाओ, उस तरफ आ जाओ, उस तरफ आ जाओ। असल अब सवाल ये है कि हमारे तमाम साहिबान यहाँ पे जो मौजूद हैं, सबका ताल्लुक रियल एस्टेट से है, सब लोग इन्वॉल्व हैं। बेनिफिट क्या है नेट जीरो? मुझसे अभी एक साहब ने सवाल पूछा कि नेट जीरो करने में या ग्रीन सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाने में कितने पैसे ज्यादा लगते हैं? तो मेरा जवाब उसके ऊपर यह है कि एक्चुअली पैसे ज्यादा नहीं लगते, पैसे कम लगते हैं। यू जस्ट हैव टू बी इनोवेटिव कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट को डिजाइन करें और उसको किस तरह से बिल्ड करें। तो सबसे बड़ा तो फायदा ये है कि आपका एनवायरमेंटल बेनिफिट तो अपनी जगह पे है, बट देयर इज आल्सो एन इकोनॉमिक बेनिफिट। और वो इकोनॉमिक बेनिफिट किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी नौयत का भी प्रोजेक्ट हो, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी अहम नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट रहा है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ही सेविंग्स को देखते हैं, हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को नहीं देखते हैं। असल में हमारी किसी भी बिल्डिंग के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आर फार मोर देन आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। हमें कैपिटल को सेंसिबली खर्च करना चाहिए, हमें अकलमंदी से खर्च करना चाहिए, ताकि हम वो सिस्टम जो वो डिजाइन बिल्डिंग में लेके आ सके जो कि हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कम कर सके। और जब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम होंगे तो ओवरऑल आपकी लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की वो कम रहेगी। And of course there are social benefits as well. हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी है, एक CSR की सब लोगों की जिम्मेदारी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ नाइस एनवायरनमेंट। सिर्फ हमें अपना घर नहीं साफ रखना, बाहर भी साफ सफाई रखना। तो सोसाइटी को हमें एज अ होल, एज अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना चाहिए। So net zero के key components आपके क्या हैं? There are 5 key components of net zero. Number 1 is bioclimatic architecture, which means कि जो architects हैं वो बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन करेंगे, they make maximum use of daylight, they make maximum use of orientation and so on and so forth. Similarly, renewable energy sources, smart technologies. People have talked about smart technologies here. Automation की बात सुबह हुई है। ये तमाम चीजें जो है ये कंपोनेंट हैं। जब इन तमाम चीजों को इकट्ठा किया जाएगा तो तब आप नेट जीरो की तरफ you can achieve net zero or at least go towards net zero. आप अपनी साइकिल। Similarly, water conservation is. So I'm not going to go into the details we have been looking again just to explain bioclimatic architecture में क्या हम बात करें। We talk about कोई भी बिल्डिंग डिजाइन हो रही है उसकी लैंड एक्विजिशन होती है तो उसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए। ओरिएंटेशन दो नौयत की हो सकती है। One is to take care of lighting, the other is to take care of आपका वेदर की या वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स। So both of them are important. Similarly, आपकी विंडोज किस नौयत की होंगी, किस तरह से ओपनिंग्स होंगी, उनके शेड्स क्या होंगे, ये भी डिजाइन का हिस्सा है और उन्हें चाहिए। Architects need to understand, designers need to understand all of this. We're talking about indoor daylight maximize करें ताकि हम artificial lighting के ऊपर हमें इंसार ना करना हो। And at the same time internal services भी जो है उनको डार्क ना रखें, उनको लाइट कलर करें ताकि effective services हों। And हम जो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा हमें एक बल्ब दिया था बाहर जो चल रहा है उसको हम मैक्सिमम इस्तेमाल करें। Similarly, हम एनर्जी की यूसेज के हवाले से बात करेंगे कि उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। Solar radiation is very good, daylight is very nice, but you also have to worry about heat, you also have to worry about कि बिल्डिंग का इंटरनल एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने कहा शेडिंग is one aspect, we can consider that while not compromising with daylight. Insulation of the building, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि बिल्डिंग को स्वेटर पहना दें ताकि ये कि हमें उसकी हीटिंग ना करनी पड़े, या ये कि अगर आप उसको स्वेटर बना दें ताकि अंदर की जो कूलिंग है वो बाहर ना जाए। So depending upon the season, insulation of the building is very important. Openings को properly close करें हम ताकि ये heat loss या cooling जो है उसकी loss ना हो या heat gain ना हो। I see a lot of engineers here who understand what I'm saying. I'm sure a lot of people also understand what I'm talking about. Thermal mass.
हमारे यहाँ कंक्रीट ब्रिक्स इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उसको हमारे पुराने ज़माने में जब बिल्डिंग्स बनती थी वहाँ पर कोई एयर कंडीशनिंग नहीं थी और हम बचपन में बहुत अच्छे माहौल में रहे हैं। आज हम एसी के बगैर रह नहीं सकते सिंपली बिकॉज वी हैव बीन ट्रेन्ड और अट्यून्ड दैट वे। लेकिन अगर बिल्डिंग्स प्रॉपर्ली डिजाइन हो, लाइमस्टोन की कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी। लाइमस्टोन इज ए ब्रीदेबल मटीरियल व्हिच अलाउज ब्रीदिंग ऑफ द बिल्डिंग। और अगर हम, आई एम नॉट सेइंग कि हम वापस लाइमस्टोन की तरफ चले जाएं, लेकिन देयर आर अदर वेज टू अचीव द सेम, जो कि आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले हमारे यहाँ। आप अंदरून लाहौर में जाके देख लें, कराची में देख लें, रावलपिंडी में देख लें, जो पुराने घर बनते थे जिस तरह के बनते थे उनमें कूलिंग की जरूरत ऐसी नहीं थी। पंखे में हम लोग इतनी गर्मियाँ गुजार लेते क्लीन एनवायरनमेंट्स को क्रिएट करें, ग्रीनरी, ट्रीज, प्लांटेशन, फॉलिएज, ये तमाम चीज़ें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। हमें जितनी मैक्सिमाइज कर सकें हम अपनी ग्रीनरी को अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए। मैं आपके चंद एग्जाम्पल्स भी शेयर करूँगा जस्ट टू शो कि उसको हम ये तमाम जो स्ट्रैटेजीज जो भी हैं इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और किया और कर रहे हैं। नेक्स्ट, I think I've covered this, heating and cooling मैंने नहीं भी explain कर दिया था, but this is just the same concept। यदि आपने winters के अंदर आपने heating को control करना है, summers के अंदर ventilation को, so आपकी खिड़कियों की openings and तमाम चीजें planning में ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ventilation को encourage करें। और artificial air conditioning या artificial atmosphere creation जो है उसको minimize करें, eradicate ना करें, लेकिन minimize करें। This is a subject that everybody knows, renewable energy, solar panels. Solar panels are very, very useful. Again, मैं डॉक्टर व्यास के ही रेफरेंस लेता हूँ। उन्होंने उनसे सवाल सुबह किया गया कि ये सोलर पैनल्स की क्या फायदे हैं, क्या नहीं है, और ये नेट जीरो, अपना नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट। I can talk about that subject for hours, but एक बड़ा बेसिक चीज़ है। Solar photovoltaic is the future, no doubt. लेकिन it has to be carefully planned. ऐसा नहीं है कि आप हर घर के ऊपर लगाते हैं तो आपके मसले हल हो जाएंगे। That is not true. Net metering is not the solution. It is part of the solution. रात के लोग क्या करेंगे, हमारे घरों में मैक्सिमम यूसेज जो है वो रात में होती है। इंडस्ट्री के अंदर नो डाउट सोलर इज वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज आप डे टाइम में इसको यूज करते हैं, लेकिन घरों में ज़्यादातर नाइट टाइम है। सो वी नीड स्टोरेज सॉल्यूशंस, वी नीड अ वे कि भी आप जनरेट करें फिर स्टोरिंग एनर्जी ताकि आप रात में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये है कि आइडियल होम इंस्टॉलेशन में एग्जांपल आपको दिया, घरों के लिए सोलर पैनल्स आर वेरी यूजफुल अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट करें विद मिनी विंड टर्बाइन्स, ताकि यदि आप रात में भी जिस वक्त रोशनी नहीं है तो तब की आपको रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगी थ्रू मे बी 2-3-4 किलोवाट में विंड टर्बाइन भी होना चाहिए। स्मार्ट सिस्टम्स, ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लार्जर प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, इफेक्टिवली चलाने के लिए। एंड इट इज नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल मॉडर्न प्रोजेक्ट्स, इवन पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये उसको रेजिडेंशियल लेवल पे भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल डू इट, बट एक कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत महंगा सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है। It's not a very expensive system. It's very affordable, and इसका payback जो है बहुत जल्दी हो जाता है because we're saving energy. हमारी एनर्जी दिन ब दिन महंगी हो रही है सिस्टम में। सस्टेनेबल मटेरियल में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इस वक्त नेट जीरो एनर्जी जो कंपनी आप लोगों को देख रहे हैं, इज अ कंपनी दैट वी एस्टैब्लिश्ड 4 years ago in Australia. So Net Zero is currently working with the Imperial College in London with a company मैं नाम अभी disclose नहीं कर सकता। We are talking about net zero carbon cement to be introduced. आप ये देखेंगे कि 8% of carbon dioxide is produced by the cement industry in the world. That is about 3 million tons of carbon every year. So we are at that point where commercially that is going to be made available, and soon it will be introduced in Pakistan as well, where cement manufacturers can employ that technology, use that methodology to generate net zero or carbon neutral cement.
And उसके अंदर कोई cost का impact नहीं है, कुछ नहीं, it's all about technology, it's all about the process. Water conservation, obviously, we need to take care of that as well. I consider it to move it. Thank you. So, water conservation बहुत अहम है. इसके अंदर we're talking about rainwater harvesting, we're talking about using grey water, आपकी building कहीं जो used water है उसको आप recycle करें for the air conditioning. I see an HVAC expert in the room as well. He will concur on that. So we have to be innovative कि हम पानी को किस तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी की रिसोर्सेज पूरी दुनिया में कम हो रही है, पाकिस्तान में भी कम. Okay, this is a quick example. This is probably दुनिया की सबसे ज़्यादा sustainable building है. This is the case study. This is the most sustainable building, and it's in Amsterdam. इसके आप मैं नाम सिर्फ शेयर करना था आप लोगों के साथ. आप स्टडी इट ऑन द इंटरनेट एज वेल. इट इज कंप्लीटली कार्बन न्यूट्रल, इट इज कंप्लीटली नेट जीरो, एंड इट इज डन वेरी सिंपली. इसके अंदर कोई कॉस्ट का कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं था. इट इज सिमिलर कॉस्ट इम्पैक्ट, सिर्फ प्लानिंग एंड अप्रोच का सिलसिला था. अगेन एन एग्जाम्पल, दिस इज इन सियाटल. तो दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, फोटोवोल्टेइक सेल्स हैं, so on and so forth. Again, my details will be out. This project is in Sydney, in Australia. This building employs 35,000 trees inside the building, and they contribute towards the cooling and the climatic control of the entire building as well, in addition to all the other aspects of efficient air conditioning, of efficient use of water and efficient use of energy, building management systems and so on and so forth. और ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं हो रही है. तो हमारे लिए तो अनोखी चीज़ है. सिर्फ उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके इंटीग्रेट करके प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज करेंगे तो हम भी वही तमाम बेनिफिट्स दे सकते हैं जो बाहर दुनिया में. ये जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान में अभी रिसेंटली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है जो कि हम लोगों ने लाहौर में मुकम्मल किया है. दिस called Monesh, जेल रोड के ऊपर ऑफिस बिल्डिंग है. इट्स अ LEED सर्टिफाइड, गोल्ड LEED सर्टिफाइड बिल्डिंग, और इसमें ये तमाम वो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई जिनका मैंने अभी जिक्र किया. प्लस इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के हवाले से ग्रे स्ट्रक्चर या कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के हवाले से जर्मन टेक्नोलॉजी हमने यूज की थी, जिसकी वजह से तब ओवरऑल कंक्रीट की रिडक्शन जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर रियलाइज की हमने एज कम्पेयर टू रेगुलर बिल्ड, एंड और विच वाज अबाउट 21%, and about 15% of steel की reduction हुई है building में. 5 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है roughly, and it's a completely flat slab building, office environment, very nicely planned. इसका जो आपका glass facade है, triple glaze लिखा हुआ है, it's actually double glaze. My apologies, but nonetheless it is a very high performance glass which helps in controlling the environment, the air conditioning inside, and it's very efficient. And जो air conditioning system इस building का design किया है वो दोनों climates के लिए, monsoon season को भी consider करते हुए and the very hot season of May and June जो है उसको भी consider करते हुए एक hybrid system design किया गया है. It's a centralized air conditioning system and it's extremely efficient. And the only reason it got LEED Gold certified, हम platinum चाहते थे, लेकिन प्लैटिनम की रिक्वायरमेंट्स रिसेंटली चेंज हुई हैं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में, जिसकी वजह से we could not achieve platinum on this building. Otherwise, this would have been the first office building in Pakistan to achieve platinum. But वो क्योंकि requirements change हुई, इसलिए we just missed it by a couple of points. प्लैटिनम की रिक्वायरमेंट 82 पॉइंट्स है, हम 80 पॉइंट्स पे हैं. गोल्ड जो है वो 50 पॉइंट्स से शुरू होता है. So you can imagine कि जी हम we are on the verge of platinum building. So it's a semi-platinum. I don't want to call it that. It is gold. It is gold. So this is an example, live example of a project that was done in Lahore, has been successfully implemented, and it has not cost an extra money to build. ये 6 पॉइंट्स हैं. अगर हम पॉइंट्स को सिर्फ हेडलाइंस ही देख लेंगे, हाउ कैन वी जस्ट जो एक एक्सरसाइज अभी हो रही है इज अवेयरनेस. सिर्फ मैं यही बात कर रहे हैं, इसी किस्म के तमाम फोरम्स अगर हम और फोरम्स पे यही करें तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और वो एक जहन में जो बात हो गई जहनशी है
कि शायद ये सब कुछ करने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं या डेवलपर को या बिल्डर को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होते हैं, दैट कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी ब्रोकन, दैट इज नॉट ट्रू। आपको ये तमाम चीज़ें करने के लिए या अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। लाइक आई कीप सेइंग, कि आपको सिर्फ इनोवेशन की जरूरत है, उन डिजाइनर्स की जरूरत है, एंड देन रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड बॉडीज को एजुकेट करना भी जरूरी है कि वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करने में हमारी मदद करें, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें सबका फायदा है। अल्टीमेटली बिल्डर, डेवलपर, ओनर, इन सबका फायदा है कि जब आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम करते हैं, बॉटम लाइन जो है आपके ROI बढ़ जाता है, एज हाईलाइटेड बाय साहिब इन द प्रेजेंटेशन। इसको स्किप कर देता हूं। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, for the next 1 minute only 30 seconds, we're going to talk about कि net zero energy was established in Australia as an entity to focus on sustainability concepts and what we can do. So it was co-founded by myself and Darren Smith, as you can see. Unison Group is the one जो कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से आया था factories wall build करने के लिए. I and Darren own the group, and then there are other people. And under that group, we created Net Zero Energy 4 years ago. This is the team. We have an Australia team that is focused. We have very well established, renowned people who are on our board who help us develop on strategies and look at different aspects of what we do. We've recently gone into Africa. We're working in the African market and also in Europe as well. Next please. Skip that. There are 5 core areas of what we do: NZD Build, NZD Technologies, NZD Carbon Offsets, NZD Fuel, and NZD Programs. We're only going to talk about NZD Build on just one more slide, and that's the end of the presentation. Okay, what do we do in NZD Build? So at least slide back up, big hand where so at the moment, we own a factory in Western Australia that produces flat pack, ready to build housing units up to 2,000 square feet per floor, and we can do multiple construction. That we're doing affordable housing, which is net zero, completely carbon neutral for the Australian government right now. और यही principle और यही पूरा concept है ऑस्ट्रेलिया में हमने develop किया पिछले 4 सालों में. अब ये है कि इसको हम अफ्रीका के अंदर 4 ममालिक में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया because they want to invest with us to set up the factory. We have our own plantation and bamboo की बात हुई थी. No doubt bamboo is a very sustainable crop, but इससे ज़्यादा जो sustainable crop है is something called Paulownia tree, which is the most sustainable tree in the world. So we plant Paulownia, हम अपनी plantation खुद करते हैं, उसी में से timber generate करते हैं, उसी से घर बनाते हैं, and so that's the best way of cycling. And Paulownia tree जो है वो full height पे 18 महीने में पहुंच जाता है. It is native to China. So we own the factory, we own market में we've had a very good response and we're working very strongly with the government in Australia. There's funding available, there are incentives available. African governments में भी है और अब very recently we just set up Net Zero Energy in Pakistan to bring the same technologies here, to bring the same concept. Keep going. चलिए आगे. मैंने packages mall का आपको जिक्र कर दिया. That was done under the Unison banner as project managers. So that's one project. Currently we are working with the Lake City Group on their projects. Real estate जो apartment जो चल रही है वो हम कर रहे हैं. ये भी इन्हीं concept के ऊपर हम develop कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं. And whatever projects we get involved in, we will employ the same technologies that we learn from Net Zero Energy in our Unison projects in Pakistan and internationally as well. So going forward, बड़ा simple सा है कि हम तमाम लोग इस पूरी convention से कुछ चीजें अपने साथ सीख के लेके जाएं, उनकी प्रेजेंटेशन सीख के ले जाएं, उसको हम इसी तरीके से 10% अपनी जिंदगी में implement कर लें. तो I think that is the way going forward. If we learn something and we implement it in our own little way, बेशक हम घर बना रहे हो या हम 50 कमरों का होटल हो या हम डॉर्मन मॉल बना रहे हो, the concept is the same, the approach is the same. तमाम लोगों को वही concept benefit कर सकते हैं. So that is my brief presentation on
what net zero energy is and how we can integrate it into real estate. Thank you very much.